السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد الطاف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اردو۔ خدمت اردو کی جو کرتے ہیں خلوص دل سے، حوصلہ ایسے ہی لوگوں کا بڑھایا جائے، اب چراغ اردو کا گھر گھر میں جلایا جائے۔ آئیے ناظرین، اے بی نیوز اردو کے پیشکش کا مطمع نظر بھی خود یہی ہے کہ اردو کا چراغ گھر گھر جلایا جائے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک قومیں اپنی جڑوں سے جڑی ہوئی ہوں گی اس وقت تک وہ باقی بھی رہیں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ سینکڑوں کٹے ہوئے درخت ایک جڑ والے درخت کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آئیے اپنی جڑوں سے جڑ جائیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی جڑوں سے جڑ سکے۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ راجیہ سبھا کے رکن و اے آئی سی سی مائنرٹی سیل کے چیئرمین عمران پرتاپ گڑھی کا کانگریس لیڈر سراج حسین نے کیا شاندار استقبال۔ حیدرآباد کے قلی قطب شاہ میدان میں سمویدھان بچاؤ سمویدھان زندہ باد کے نعرے کے تحت منعقد شدہ اجلاس میں نیشنل کانگریس مائنرٹی سیل کے چیئرمین اور راجیہ سبھا کے رکن عمران پرتاپ گڑھی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع کانگریس جنرل سیکرٹری اور پروگرام کے آرگنائزر ایس کے سراج حسین اور نرمل لائبریری کے چیئرمین سید ارجمند علی کے ساتھ آج شمشاباد ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ واضح رہے کہ بی جے پی حکومت کی جانب سے بابا صاحب امبیڈکر کے لکھے ہوئے آئین میں ترمیم کی کوششوں کی مخالفت میں منعقد شدہ اس اجلاس میں کانگریس قائدین، اقلیتوں، ایس سی، ایس ٹی اور دیگر پسماندہ طبقات کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں عوام میں شعور پیدا کرنے کی اپیل کی گئی، ونیز بی جے پی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اپنی تشویش عوام تک پہنچائی گئی۔ واضح رہے کہ ملک بھر سے ہزاروں اقلیتی بھائیوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع ایچوڑا منڈل کے کیشو پٹنم گاؤں میں اتوار کی صبح اس وقت شدید کشیدگی پیدا ہو گئی جب گاؤں والوں نے محکمہ جنگلات کے عملے پر حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ جنگلات کے عملہ نے صبح کے وقت گاؤں میں کارٹن سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران کئی گھروں سے لکڑی کے گٹھے اور فرنیچر برآمد کر کے ضبط بھی کر لیا، تاہم گاؤں والے اس بات کو ضبط نہیں کر سکے۔ جب یہ کارروائی جاری تھی تو گاؤں والوں نے محکمہ جنگلات کے عملے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں جادو نوشیلال نامی بیٹ آفیسر کو معمولی چوٹیں آئی، علاوہ جنگلاتی محکمے کی ایک گاڑی پر بھی حملہ کر دیا گیا اور اس کے شیشے توڑ دیے گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کر دی گئی، تاہم محکمہ جنگلات نے حملے کی تفصیلات کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی، چنانچہ واقعے کے متعلق مزید معلومات کا تاہم انتظار ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں سنکرانتی کی تعطیلات کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا ہے۔ سنکرانتی تہوار کے لیے ایک ہفتے کی تعطیلات رہیں گی۔ اسکولز کے لیے 11 تا 17 جنوری اور جونیئر کالجز کے لیے 11 تا 16 جنوری تک تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسکول 18 جنوری کو دوبارہ کھلیں گے۔ واضح رہے کہ تعلیمی کیلنڈر کے مطابق 13 جنوری سے تعطیلات دی جانے والی تھی، تاہم اس سے 2 دن قبل ہی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ خادمین امت مہاراشٹر کے زیر اہتمام سرزمین کوٹلہ پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریری و اسلامی کوئز مقابلے کا 5 جنوری 2025 بروز اتوار صبح 10:30 بجے تا 2 بجے دن بمقام AJM کنونشن ہال نزد کوٹلہ منعقد کیا گیا۔ اس تحریری و اسلامی کوئز مقابلے میں شہر کوٹلہ کے مختلف اردو میڈیم اسکول سے تقریباً 800 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ جلسے کی کارروائی مولوی یوسف علی نے چلائی۔ اس موقع پر طلبہ و طالبات سے مخاطب کرتے ہوئے مولانا سید مظہر قاسمی نے کہا کہ امتحان میں شرکت کرتے وقت طلبہ اس بات کو دل سے نکال دیں کہ میں کچھ نہیں جانتا، بلکہ طلبہ کو چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ امتحان لکھیں۔ مولانا نے کہا کہ بہت کم لوگ اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہیں۔ مولوی عبد الکریم لیکچرر ڈگری کالج نے کہا کہ اس طرح کے امتحانات ہر شہر میں منعقد کیے جانے چاہیے۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر جناب عبد الواجد پرنسپل، جناب محمد کریم الدین لیکچرر ڈگری کالج، جناب غوث الرحمان پرنسپل گورنمنٹ جونیئر کالج کوٹلہ اور جناب محمد عبد المعیز لیکچرر نے شرکت کی۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ ہندوستان میں بین الاقوامی طلبہ کے لیے 2 خصوصی زمروں کے ویزا شروع کیے گئے ہیں۔
वजारत दाखिला ने ई स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा की शुरुआत की है, लिहाजा तमाम दरखास्त गुजारों को चाहिए कि वो हुकूमत के स्टडी इन इंडिया पोर्टल को इस्तेमाल करें। ई स्टूडेंट वीजा की सहूलत इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड और अहल बैरूनी तलबा के लिए होगी, जबकि ई स्टूडेंट एक्स वीजा बैरूनी तलबा पर मुनहसिर अफराद को मिलेगा। ओहदेदारों का कहना है कि अब हिंदुस्तान में आला तालीमी इदारों में दाखिला लेने के ख्वाहां तलबा को वेबसाइट के जरिए दरखास्त देना लाजमी होगा। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी होगा कि स्टूडेंट वीजा 5 साल तक के लिए जारी किया जाता है, ताहम इसमें तौसी भी मुमकिन है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद एक आलमी शहर है जो न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे चंद बेहतरीन शहरों के कतार में खड़ा नजर आ रहा है। मुझे खुशी है कि अमेरिकन प्रोग्रेसिव तेलुगु एसोसिएशन ने अपनी पहली और सबसे बड़ी आलमी तेलुगु एनआरआई बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए हैदराबाद का इंतखाब किया। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा, हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी के तौर पर तरक्की कर रहा है। हमारी हुकूमत हैदराबाद को आलमी शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए पुरअज़्म है, वनीज इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। शहर में सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा, हम APTA को तमाम शोबे में मौके मैसर करेंगे। तेलंगाना सिनेमा, कारोबार और सियासत समेत किसी भी शोबों में बेमिसाल मौके का मरकज है। रियासती हुकूमत मेगा प्रोजेक्शन पर अमल कर रही है। मूसा नदी की बहाली, मेट्रो रेल की तोसी, फ्यूचर सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, EV हब, ग्रीन एनर्जी हब, रीजनल रिंग रोड से तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हासिल होने की तवक्को है और इससे तेज रफ्तार तरक्की भी मुमकिन है। इस तरीके से बहुत से लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मेरी हुकूमत वाज़ेह पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस हुकूमत हर उस शख्स को तेलंगाना में सरमायाकारी करने की दावत देते हुए खुशी महसूस कर रही है जो रियासत की तरक्की और खुशहाली में शिराकतदार बनना चाहते हैं। मैं आप सबसे रियासत तेलंगाना की तरक्की में शिराकतदार के तौर पर शामिल होने की अपील भी कर रहा हूं। मैं आप लोगों से ख्वाहिश कर रहा हूं कि इस ज़मन में सरमाया के साथ आएं और सनतें कायम करें। चीफ मिनिस्टर हाईटेक्स में तेलुगु एनआरआईज की APTA के ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। दौरान खिताब उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जिसमें बहुत सारे मौके हैं। यहाँ का बुनियादी ढांचा दुनिया के बेहतरीन ढांचों में से एक है। हम आपकी हर तरह की हिमायत और हौसला अफजाई करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप जब तेलंगाना आए तो अपनी सरमायाकारी, कारोबारी मंसूबों और सनतों के साथ आएं। यह हमारी हुकूमत है। यहाँ आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए आपकी मदद की जाएगी। हम पहले ही सयाहती पॉलिसी का ऐलान कर चुके हैं। आपकी सरमायाकारी तेलंगाना में पूरी तरह से महफूज है। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर है, इसलिए आप रियासत की तरक्की में शिराकतदार बने। इसी के साथ एक और खबर कि रियासत तेलंगाना जिला रंगारेड्डी के शंकरपल्ली में सेरोजा दीनी इज्तिमा का आगाज 3 तारीख को बाद नमाज जुमा किया गया था, जो बरोज इतवार नमाज ज़ोहर से कबल रिक्कत अंगेज दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। तबलीगी जमात के इस दीनी इज्तिमा में 2 से 3 लाख के दरमियान फर्जंदान इस्लाम की शिरकत का अंदाजा लगाया गया है। इज्तिमा के आखिरी दिन उलमा के खिताबात के साथ दुआ का भी एहतमाम किया गया। तकरीबन आधे घंटे तक दुआ का रूह परवर मंजर देखा गया। दुआ के मौके पर शामियाने में हर तरफ फर्जंदान इस्लाम अश्कबार होते हुए इस्लाम की सलामती, मुल्क में अमन व अमान की और भाईचारगी की दुआ करते देखे गए। क़ब्लजी उलमाए कराम में मौलाना मोहम्मद फारूक साहब ने खिताब करते हुए फरमाया कि हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लें। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बड़े खुशनसीब होते हैं। हमारा काम है कि हम हर फर्द तक पहुंचकर दीन की दावत देने वाले बने। उन्होंने फरमाया कि दाई वो होता है जो सबके लिए खैर खाही करे और हालात आने पर सब्र भी करे। उन्होंने फरमाया कि अपने घरों में दीनी हल्के लगाकर अपने बच्चों को दीन से आरास्ता करें। हर मुसलमान को खुशामद करते हुए मस्जिद के माहौल में लाए ताकि अल्लाह का घर हमेशा आबाद रहे। उलमा की कदर करो, उलमा की अहमियत को समझो, ये हमारे मोहसिन हैं। उलमा कराम की दुआएं लेने वाले बनो। अगर हमने इरादा नहीं किया तो कोई हमें बचा नहीं सकता और बदल नहीं सकता। उन्होंने मजीद कहा कि सूदी कारोबार से हम सबको बचना चाहिए। इस काम से हमारे अमाल ज़ाय हो जाते हैं। अगर किसी को धोखा दिया हो तो फौरी तौर पर तौबा कर लें, अपनी कमाइयों को पाक करें और अपने अखलाक को सुधारने की कोशिश करें। उन्होंने मजीद कहा कि हमें मदीने का माहौल हैदराबाद में बनाना है। इसके लिए हम सबको जी जान लगाकर दीन की मेहनत करना होगा। उन्होंने फरमाया कि सुन्नत के तरीके से निकाह करते हुए निकाह को आसान बनाएं।
पूरे मुल्क में अमन व अमान और मुल्क की भाईचारगी के लिए दुआएं भी की गई। इस मौके पर इज्तिमा के जिम्मेदारों ने पुलिस महकमा, दीगर महकमों का और दीगर तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया। मदीना मुनव्वरा से एक खुशखबरी आ रही है कि रियाजुल जन्ना में दोबारा दाखिले की 1 साला पाबंदी का इख्तिताम हो चुका है और अब हर 20 मिनट में दाखिले की इजाजत होगी। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी होगा कि इससे कबल 1 साल तक ये पाबंदी आयद थी, जिसका मकसद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ज़ायरीन के दरमियान मुनासिब तकसीम यकीनी बनाना था। मदीना मुनव्वरा हज व उम्रा के अहम उमूर की एप्लीकेशन ने अपनी ताज़ा अपडेट्स में ये इतला दी है। नई अपडेट्स के मुताबिक अब ज़ायरीन हर 20 मिनट के बाद रियाजुल जन्ना में दोबारा दाखिले के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इससे कबल 1 साल तक ये पाबंदी आयद थी, जिसका मकसद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ज़ायरीन के दरमियान मुनासिब तकसीम यकीनी बनाना था, ताकि हर शख्स को रोज़े मुबारक और रियाजुल जन्ना में हाजिरी का मौका मिल सके। ये तब्दीली उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं या जो उम्रे की गर्ज से वहां जाने वाले हैं। अब वो दिन में कई मरतबा रियाजुल जन्ना में जा सकेंगे, जो कि एक अजीम मकाम है और जो मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा रूहानी अहमियत रखता है। लेकिन इसके लिए परमिट हासिल करना जरूरी होगा। नुस्ख ऐप की ताज़ा तरीन अपडेट्स में यह भी बताया गया है कि अगरचा 1 साला पाबंदी खत्म कर दी गई है, ताहम रियाजुल जन्ना में दाखिले के लिए अभी तक वही तरीक़ेकार बरकरार है, यानी ज़ायरीन को इजाज़त और परमिट सिर्फ नुस्ख ऐप से ही हासिल करना होगा। नुस्ख ऐप जो सऊदी हुकूमत की ऑफिशियल ऐप है, इसके जरिए ज़ायरीन को मुक़द्दस मकामात पर जाने की इजाज़त मिलती है और ये ऐप रोज़ाना की बुनियाद पर परमिट्स जारी करती है। सऊदी हुकाम की जानिब से ताहाल कोई रस्मी बयान नहीं आया, ताहम इस बात का तज़किरा किया गया है कि इस हवाले से सऊदी हुकाम, वज़ारत हज व उम्रा या हरमैन शरीफैन की प्रेसिडेंसी की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता अहकाम जारी नहीं हुए हैं। ताहम नुस्ख ऐप की अपडेट्स इस तब्दीली को जाहिर कर रही है। 1 साल कबल इस पाबंदी को एहतियाती तदाबीर के तौर पर आयद किया गया था, ताकि तमाम ज़ायरीन को रियाजुल जन्ना और रोज़े मुबारका में हाजिरी का शर्फ हासिल हो सके और किसी भी किस्म की भीड़ से बचा जा सके। ताहम अब नुस्ख ऐप की ताज़ा अपडेट से ये बात सामने आई है कि इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है और ज़ायरीन को एक दिन में कई बार इस मुक़द्दस मुकाम पर जाने का मौका मिलेगा। खास तौर पर उम्रा पर आने वालों के लिए यह खबर उन तमाम मुसलमानों के लिए खुशी का बास है जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं या जो उम्रा के लिए आने वाले हैं। अब वो न सिर्फ बार बार रियाजुल जन्ना में जा सकेंगे, बल्कि इसके जरिए उनका रूहानी तजुर्बा भी मजीद बाबरकत और खुशगवार बनेगा। इसी तरह एक और खबर के चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने अपने कट्टर हरीफ लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को यह कहते हुए धुतकार दिया कि उन्होंने गलती से अपोजिशन पार्टी के साथ इत्तेहाद किया था, कि जिसने इख्तिदार में होते हुए भी मुल्क को, वतन और कौम मिल्लत के लिए कुछ भी नहीं किया। साबिक चीफ मिनिस्टर बिहार लालू प्रसाद यादव ने चंद दिन कबल दावा किया था कि नीतीश कुमार के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जनता दल यू सरबराह ने शुमाली बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग हमसे पहले इख्तिदार में थे, क्या उन्होंने कुछ किया? लोग शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। मैंने गलती से उनके साथ दूसरी बार इत्तेहाद किया था। वाज़ेह है कि नीतीश कुमार इन दिनों रियासत गिर प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्होंने पूछा कि इस वक्त औरतों की क्या हालत थी। आज आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देख सकते हैं जिन्हें हमने जीविका का नाम दिया। मरकज ने हमारे मॉडल को दोहराया और उसे आजीविका का नाम दिया। क्या आपने पहले कभी देहाती औरतों में ऐसा एतमाद देखा? नीतीश कुमार ने ताहम लालू प्रसाद यादव की पेशकश पर सवालात का जवाब नहीं दिया। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार अनकरीब मुनक़िद शुदनी बिहार असेंबली इलेक्शन में वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के रियासती कायदीन का भी कहना है कि जनता दल यू सरबराह को साल 2025 के असेंबली इलेक्शन में एनडीए का चेहरा बनाया जाएगा। बीजेपी लोकसभा में अक्सरियत न होने के बाद जनता दल यू और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की तायद पर मुनहसिर है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।